Start. We welcome you to school today, school today, school today. We welcome you to school today. Please come and play. We are glad to have you here today, here today, here today. We are glad to have you here today. Yes, it's a special day. Welcome, everyone. Welcome to this new and beautiful, beautiful, beautiful day. Same as like you. Chalo. Now, kiddos, we are going to sing Mulberry Bush. And I want everyone to do it with ma'am. Okay? Chalo, let's start. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face, so early in the morning. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we take a bath, take a bath, take a bath. This is the way we take a bath so early in the morning. This is the way we dress ourselves, dress ourselves, dress ourselves. This is the way we dress ourselves so early in the morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair so early in the morning. This is the way we walk to school, walk to school, walk to school. This is the way we walk to school so early in the morning. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush so early in the morning. Okay, kids. Now, kids, stand up for national anthem. Come on. And आप लोग बड़े हो, and you all know now that during national anthem we have to stand straight. All right. So, thumbs inside, fingers on the top, and hands by your side. Now no one is going to move. Attention. Okay. Now start. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Okay, kids. Now, kids, sit down. Okay, so national anthem is written by Rabindranath Tagore. Who has written national anthem? Rabindranath Tagore. Come on, say everyone. National anthem is written by Rabindranath Tagore. Okay, so now kids, let's talk about the day and the date. So what is the day today? Today is Wednesday. Today is Wednesday. Okay, and the date is
6 October 2021. 6 October 2021. As you all know, October month is going on. Okay. So, kids, now you tell me how many days are there in a week. Ishani, pay attention. Pay attention here. 7 days. How many days are there? There are 7 days. So, let's say together. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday is the holiday. Now let's talk about the months of a year. So, start. How many months are there in a year? There are 12 months in a year. There are 12 months in a year. Okay, let's say together. January. I want everyone to say. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, kids, now let's start the class. So come on, get your Hindi copy. First of all, we are going to do our Hindi work. Get your Hindi copy and write down today's date, 6/10/2021. Okay. हम कौन सी मात्रा पढ़ रहे थे? We are learning छोटी ऊ की मात्रा. छोटी ऊ की मात्रा. तो मैम I told you, जिस अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा लगती है उसमें उ का साउंड आता है. ऊ नहीं, उ जिस अक्षर में लगेगी. का में छोटे ऊ की मात्रा कु, बा में छोटे ऊ की मात्रा बु, या में छोटे ऊ की मात्रा यू. Like this. Okay. So today we have to write प्रश्न उत्तर of ऊ की मात्रा. So write down the heading. प्रश्न उत्तर. प्रश्न उत्तर. ओके. सो प्रश्न 1. चलो. न दा में छोटी, दा में बड़ी ई की मात्रा दी. नदी, पर, नदी पर, आधा का या. क्या आपको मैम ने बताया था, जब कभी हम कोई भी अक्षर आधा लिखते हैं, whenever we writing any अक्षर हाफ, ठीक है, तो वो अक्षर दूसरे अक्षर के साथ मिक्स होकर पढ़ाता है. जैसे क के बाद या है तो हम पढ़ेंगे का को या में ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे. क्या. ठीक है. जब कोई आधा अक्षर लिखते हैं हम तो वो अपने पास वाले अक्षर के साथ मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है. क्या. नदी पर क्या. ब, ना में आ की मात्रा ना, बना था. नदी पर क्या बना था. रीड एंड राइट. रीड एंड राइट. और जल्दी करने की जरूरत नहीं है. ओके, देयर इज नो नीड टू रश.
आराम से लिखिए, रीड कर कर लिखिए। ऑल राइट। उत्तर, उत्तर एक, ना, दा में बड़ी की मात्रा दी, नदी, पर, नदी पर क्या बना था? पुल बना था। पा में देखो पुल आ रहा है, पुल, पु, तो हम छोटे ऊ की लगाएंगे। अगर पुल आता तो हम बड़े ऊ की लगाते। ठीक है, तो छोटे ऊ, पु, ल, पुल, नदी पर पुल, बा में ब, ना में आ की मात्रा ना, बना, और था में आ की मात्रा था, बना था, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब होता है कि अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नाउ our sentence is completed. Now we don't have to write anything in this sentence. Okay, and we have to start another one. That is mean by purna viram. Now the sentence has completed. नदी पर क्या बना था? नदी पर पुल बना था। Now you have to make a cross on the next line. ये क्रॉस का मतलब you don't have to write anything here. All right? चलो next. Can I write the next one? प्रश्न 2, का में छोटी छोटी की मात्रा की, स, की, किसकी, किसकी आवाज, आ में आ की मात्रा आ, वा में आ की मात्रा वा, और ज, आवाज सुरीली थी। सा में छोटे ऊ की मात्रा सु, रा में बड़ी की मात्रा री, सुरी, ला में बड़ी की मात्रा ली, सुरीली, और था में बड़ी की मात्रा थी, सुरीली थी। किसकी आवाज सुरीली थी? रीड एंड राइट। आपको जो भी आप लिख रहे हो, एवरीथिंग यू हैव टू रीड। नाउ उत्तर, अब हमें इसका उत्तर लिखना है। उत्तर मतलब आंसर। ठीक है, तो किसकी आवाज सुरीली थी? माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, र, ला में बड़ी की मात्रा ली, मुरली, मुरली, का में बड़ी की मात्रा की,
अ में आ की मात्रा आ, व में आ की मात्रा वा और ज आवाज। सा में छोटे ओ की मात्रा सु, रा में बड़ी की मात्रा री और ला में बड़ी की मात्रा ली। सुरीली, मुरली की आवाज सुरीली थी। था को थी बनाने के लिए बड़ी की मात्रा लगाएंगे, पूर्ण विराम। मुरली की आवाज सुरीली थी। ओके। नदी पर क्या बना था? नदी पर पुल बना था। किसकी आवाज सुरीली थी? मुरली की आवाज सुरीली थी। The title of the Hindi rhyme is मेंढक मामा। चलो let's start. मेंढक मामा छाता लेकर, leave all the work and do say the rhyme. मेंढक मामा छाता लेकर कुछ लेने बाजार चले। इकरा, आपको नहीं करना इकरा। If you don't want to do, I'll remove you from the class. Start again. मेंढक मामा छाता लेकर कुछ लेने बाजार चले। पानी बरस रहा था रिमझिम, मगर जरूरी काम चले। जैसे ही 2 कदम चले, कीचड़ में वह फिसल गए। धरती पर गिर पड़े धराम, मुंह से निकला हाय राम। चलो स्टार्ट अगेन। मेंढक मामा छाता लेकर, कारुण्या स्टॉप राइटिंग एंड डू अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर। मेंढक मामा छाता लेकर कुछ लेने बाजार चले। पानी बरस रहा था रिमझिम, मगर जरूरी काम चले। जैसे ही 2 कदम चले, कीचड़ में वह फिसल पड़े। धरती पर गिर पड़े धराम, मुंह से निकला हाय राम। All right, okay kids. Chalo. Now, kids, let's talk about the water cycle and then we'll take a screen break. Okay? Everyone pay attention here. Everyone pay attention here. Water cycle. अच्छा मैम आपको डेली करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? वाई? बिकॉज आपको उसके वर्ड्स लर्न होने चाहिए। ठीक है? वाटर साइकिल मतलब पानी कहाँ से आता है, रेन कहाँ से आती है। तो जैसे मैम ने आपको बताया था, पानी, नदी का पानी, ओशन का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं, बादल में पानी भरता है और बादल में से फिर पानी बारिश होती है। जब बादल पूरी तरह से फुल हो जाते हैं तो वो बारिश के तरह पानी को नीचे भेज देते हैं
और वो बारिश का पानी फिर से नदी में आता है, फिर से नदी का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर से बादल बनते, फिर से बारिश होती है, फिर पानी नदी में आता है। तो इस तरह से साइकिल चलती है राउंड राउंड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। Okay, so first of all, ma'am told you कि when sun raises falls on water. I told you yesterday also कि जब सूरज की किरणें, सूरज की रेस पानी पर पड़ती हैं तो पानी को क्या कर देती है, गर्म कर देती हैं। It heats up the water. Okay, then जब पानी गर्म होता है, then the vapors begin to appear. भाप निकलने लगती है, पानी भाप बनकर ऊपर जाने लगते हैं। तो this process is known as evaporation. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। ऑल राइट, व्हेन द सन हीट्स अप द वाटर, व्हेन द सन रेज हीट्स अप द वाटर एंड द वाटर वेपर्स बिगिन टू अपीयर, ओके, बिगिन टू रेज, उसमें से पानी में से वाटर वेपर्स निकलने लगे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। पानी गर्म हो और भाप बनकर ऊपर जाने लगे, this is known as evaporation. All right, understood? When the sun rays heats up the water and the vapors begins to appear, this is known as evaporation. फिर क्या होता है, ये जो रेस, ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये क्लाउड्स में पानी बनकर फिल होने लग जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी गर्म होता जाएगा, पानी भाप बनकर ऊपर जाएगा और कहाँ फिल होगा जाकर, क्लाउड्स में। अच्छा, आपने कभी देखा है, हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, हमने एक ग्लास लिया और उसमें हमने पानी भरना स्टार्ट करा, ठीक है, तो आप कब तक पानी भर सकते हो उस ग्लास में, जितनी उसमें कैपेसिटी है, जितनी उसमें जगह है ना। कभी ऐसा होता है कि ग्लास तो इतना सा है पर हमने इतना बड़ा जग उसमें भर दिया, इज इट पॉसिबल, यस और नो, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ग्लास में जितनी जगह है हम सिर्फ उतना ही पानी उसमें भर सकते हैं, जब ग्लास पूरा फुल हो जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, बहने लगेगा। द सेम थिंग हैपन्स हियर, ठीक है। अच्छा, जब ये वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर क्लाउड में भरते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स डाउन, जब वाटर वेपर्स ऊपर जाकर ठंडी होती हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, और कहाँ फिल होती हैं वो पानी की बूंदें, क्लाउड्स में। ओके, तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। ऑलराइट, जब पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। एंड व्हेन द वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वाटर वेपर्स पानी की बूंदों में कन्वर्ट होकर बादल में फिल होने लग जाए, क्लाउड्स में भरने लगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब जैसे मैम ने आपको बताया था, हाँ मैम ने आपको बताया था कि जैसे आपको एक ग्लास का एग्जाम्पल दिया मैम ने, ठीक है, ग्लास में हम उतना ही पानी फिल कर सकते हैं जितनी उसमें कैपेसिटी है। जब पानी ऊपर तक भर जाएगा तो पानी बाहर बहने लगेगा, है ना। द सेम थिंग हैपन्स हियर, पानी की जो ड्रॉपलेट्स इसमें भरा रही हैं, फिल हो रही हैं, वो तब तक ही भरेंगी जितनी उसमें कैपेसिटी होगी। जब क्लाउड्स में पानी फुल हो जाएगा और क्लाउड्स में कैपेसिटी नहीं बचेगी उसको होल्ड करने की, तो क्लाउड क्या करेगा, उस पानी को फिर से नीचे भेज देगा। ठीक है, ये जो वाटर वेपर्स ऊपर आ रही हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर क्लाउड्स में भरेंगी, भरने लगेंगी। कब तक भरेंगी क्लाउड्स को, जब तक क्लाउड्स में कैपेसिटी है उसको पानी को भरने की। जब क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे, व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी एंड दे कांट होल्ड मोर वाटर, और वो और ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, ग्लास की तरह होगा, जिस तरह से ग्लास में से पानी बहने लगेगा, इन द सेम वे क्लाउड्स जब फुल हो जाएंगे तो वो भी रेन के फॉर्म में पानी को वापस से नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी रेन के फॉर्म में क्लाउड्स नीचे भेज देंगे। अंडरस्टूड? सो यू रिमेंबर दिस प्रोसेस ओनली, evaporation, condensation
एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है जब क्लाउड्स फुल हो जाए और उनमें और कैपेसिटी ना बचे पानी को होल्ड करने की, देन इट रिलीजेस द वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। वो पानी को नीचे भेज देते हैं रेन के फॉर्म में, बारिश होती है। ठीक है, दिस